Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. As you all know that the result of CSS 2020, the written part has now been announced. So there is a reasonable majority of the aspirants that has particularly failed in essay. In my Facebook post on February 12, the very same day on which essay paper was held, I pointed out to this particular difficulty कि इस साल ऐसे का पेपर comparatively आसान आया है in terms of its interpretation, in terms of the nature of topics, क्योंकि काफी सारे topics जो थे contemporary affairs oriented थे, so majority took this for granted. So this particular this video serves the purpose as to why majority of the aspirants has failed essay paper and what must be done. So there is a twofold objective of this discussion. The reason behind this discussion is this simple philosophy that majority of the CSS candidates still believe that in CSS paper, failure is basically because of the bad luck and the fault in number of stars. Well, I have a different hypothesis to believe. I particularly believe that there is no fault in your stars. Do not blame your stars, bad luck or hard luck. There is a fault in your strategy that you need to understand and you need to work in a proper manner. So let's be very specific and talk about what was wrong with the essay paper. This will be our first video and then we will be following the second video, inshallah, जिसमें हम फिर दीगर papers के बारे में भी बात करेंगे, composition, GK and other papers. So what is wrong with the essay paper and how to right those wrongs basically? This is not the first time कि इतने सारे लोग जो essay के paper में जो वो fail हुए. 2019 में the number was around 500. 2018 में the number was comparatively better, around 1200, and before that again the number was equally same that is now. So based on the examiner report and based on the experience I have been teaching essay, I have pointed out some 5 to 8 things that aspirants are wrong at and they need to right that. पहला जो मसला है आप में से अक्सरियत का वो ये है कि उनकी करेक्ट इंग्लिश नहीं है. करेक्ट इंग्लिश से क्या चीजें मुराद ये हैं कि भाई आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मसला है, पंक्चुएशन का मसला है, उसके बाद आपके कोलोकेशन का मसला है, राइट वर्ड एट राइट प्लेस जिसे हम इंग्लिश एक्सप्रेशन कहते हैं, ये मसला है. करेक्ट इंग्लिश के साथ एसोसिएट चीज है कि काफी लोगों का करेक्शंस के ऊपर उबूर नहीं है. काफी लोग क्लॉज एनालिसिस सही नहीं कर पा रहे जिसकी वजह से उनके एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लॉज के हवाले से डिफरेंट आ रहा है, सेकंड में उनका डिफरेंट आ रहा है. सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट. आई वुड बी मोर प्रिसाइज ऑन दैट. सेकंड मेजर इशू ये है कि अगर आप में से जिन लोगों की अंग्रेजी ठीक है और फिर भी उनके ऐसे के पेपर में लेट से 12 नंबर आए हैं, 17 नंबर आए हैं या 20 नंबर आए हैं, तो दे नीड टू लुक इनटू दिस सेकंड पॉइंट नंबर बी, and that is the selection of the topic and identifying the contention or the spirit of the topic. मैं particularly point out करूंगा 2 topics की तरफ. For example, हमारे पास पहला topic था polarized politics, issues and challenges of democracy in Pakistan. The reasonable majority that has failed this particular essay is one because उन्होंने 2018 में एक democracy से oriented एक topic था, democracy hopes and hurdles, उनके ऊपर उसके ऊपर ऐसा लिखा था. And they just started writing exactly the same thing that was asked in the topic democracy hopes and hurdles, rather than looking into the idea कि भाई इस 2020 के पेपर में एक और वर्ड भी इसमें added है, that is the polarized politics. So you need to write this essay in context of the polarized politics rather than making this essay as a simple essay of democracy hopes and hurdles. So examiner report 2017 में भी यही बात point out कर रही थी जो कि आज भी relevant है कि जो topic आप select कर रहे हैं उसमें जो spirit of the topic है, you are not hitting that spirit. Second topic था let's say Pakistan and the future of Kashmir cause, and there were the rival interpretations. एक इंटरप्रिटेशन ये थी कि कश्मीर का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है क्योंकि इसमें मुतबादिल जो सॉल्यूशंस हैं वो सामने आ रहे हैं. मुशर्रफ प्लान है, ओवन डिक्सन प्लान है, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, चंद लोग इंडिपेंडेंट कश्मीर के आइडिया के ऊपर भी बात कर रहे हैं, चुनाव फार्मूला भी रेलेवेंट है, एटसेट्रा. अच्छा, चंद लोगों ने इंटायरली डिफरेंट इंटरप्रिटेशन की थी इसकी ये कश्मीर के मसले के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान एंड फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉज, तो चंद लोगों ने सिर्फ ये बातें लिखी थी कि
वेल कश्मीर कॉज जो है वो मौजूदा हालात में बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370 रिवोकेशन, बिकॉज ऑफ पॉलिसीज ऑफ हिंदुत्व, द मिलिटराइजेशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट, एक्सटेंशन यूज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, इट्स एन एक्सपेंशन ऑफ स्टेट पॉलिसी की वजह से अब इसका जो फ्यूचर है वो काफी तौर पर डीलेजिटिमाइज हो गया, एंड द पीपल ऑफ कश्मीर आर बेसिकली नॉट इन अ पोजीशन टू एक्चुअली सिक्योर देयर राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन. सो माय पॉइंट इज कि इसमें जो बेसिक इंटेंशन थी डिबेट की वो ये थी कि पाकिस्तान की कश्मीर और कॉज के हवाले से एक तो पोजीशन क्या रही है, स्ट्रगल क्या रही है, करंट डेवलपमेंट्स ने किस तरीके से मसला कश्मीर को जो है वो मजीद कॉम्प्लेक्स कर लिया है, और फिर उस पूरे कॉन्टेक्स्ट के बाद जो इस मसले का जो वो हल क्या बनता है. सो मेजॉरिटी टुक अ वेरी नैरो स्टांस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड दिस लेड टू फेलियर. कुछ टॉपिक्स में चले मान लेते हैं कि स्पिरिट ऑफ द डिबेट वाज क्लियर, जैसे पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म इन पाकिस्तान, जैसे चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी. वहां पर फिर मसला आ जाता है कि आपके रिलेटिव डिफरेंस पेपर में नहीं था या रेलेवेंट डिफरेंस हम नहीं क्रिएट कर पाते. लेट्स से चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स सब लोगों ने वही लिखी है, एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी आउट ऑफ बॉक्स आपने कोई सॉल्यूशंस नहीं दिए. तो दीज थिंग्स एक्चुअली कम इनटू प्ले एंड इफेक्ट योर रिजल्ट. सो टू से कि जिन लोगों का स्पिरिट ऑफ द डिबेट ठीक भी है तो देयर स्पिरिट ऑफ एनालिसिस इज नॉट दैट अप टू द मार्क, दैट नीड्स टू बी वर्कड ऑन. तीसरी बात मैं कहूँगा, उन काफी सारे एस्पायरेंट्स हमारे ऐसे हैं जो कि माशाल्लाह प्रिपेयर्ड है, इसके ऊपर रिलाई करते हैं. ज्यादातर हमारे यहाँ मुख्तलिफ टीचर्स मुख्तलिफ अकेडमीज ऐसा कर लेते हैं कि वीकली एक टॉपिक असाइन कर लेते हैं और काफी सारे एस्पायरेंट्स उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, फिर सैटरडे को वो ना अटेम्प्ट कर लेते हैं. अब on one hand this is a good practice, I do acknowledge that, क्योंकि इस प्रैक्टिस से कम से कम आप कुछ ना कुछ लिख तो रहे होते हैं, अदरवाइज आप लिखेंगे ही नहीं. लेकिन इस प्रैक्टिस का एक मेजर ड्रॉबैक ये है कि यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द अनसीन सिनेरियो. मसलन आपने प्रैक्टिस तो कर ली, लेट्स से आपके पास टॉपिक आ जाए डायलॉग इज द बेस्ट कोर्स टू कॉम्बैट टेररिज्म, लेकिन अगर एग्जाम में टेररिज्म के ऊपर यही टॉपिक आ जाए कि इन फाइट अगेंस्ट टेररिज्म एंड करप्शन इट इज इम्परेटिव नॉट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन सिविल लिबर्टीज एंड ह्यूमन राइट्स, तो वहां पे एस्पायरेंट्स आर अनएबल टू टैकल दिस डिबेट. सो आपने प्रैक्टिस करनी है जरूर प्रिपेयर्ड एसेस की, दिस इज अ गुड स्टार्ट, लेकिन इनिशियल लेवल पे ये एक अच्छी प्रैक्टिस है. लॉन्ग रन में आपकी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो ये है कि हफ्ते में लेट्स इंट्रोडक्शन और आउटलाइन ही आप बना लें 2 से 3 टॉपिक्स के ऊपर, लेकिन आप अनसीन चीजों के ऊपर प्रैक्टिस करें. जितना आप अनसीन एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को सेंसिटाइज कर लेंगे उतना ही बेहतर आप विद इन एग्जाम रूम परफॉर्म कर लेंगे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस चीज के ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लें जो कि रेलेवेंट है, वो ये है कि काफी सारे एस्पायरेंट्स हैं जिनके मतलब एग्जामिनर रिपोर्ट में भी, पिछली एग्जामिनर रिपोर्ट्स में भी ये बात है, और मैंने जो काफी एसेस चेक किए उसमें भी ये बात नजर आई कि आपके ओवरऑल एसेस के स्ट्रक्चर में इश्यूज है. मसलन जो लोग आउटलाइन बहुत ही ज्यादा रैशनल लिख रहे हैं, कोई 22 या 24 पैराग्राफ प्रॉमिस करते हैं आउटलाइन में, दे आर नॉट एबल to write all those points in their essay, जिससे हो क्या रहा है कि भाई there is an impression कि in outline you promised moon, but in your body paragraph there is nothing that could actually convince or to persuade the mind of the reader. आउटलाइन से जुड़ी एक और चीज भी ये है कि एस्पायरेंट्स आर अनएबल टू कोप विद द इशू ऑफ द टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट एक सीरियस इशू है ऐसे के पेपर का. काफी लोगों को पहला 1.5 घंटा आउटलाइन में लग गया, जिसकी वजह से उनके ओवरऑल एसे की जो लेंथ थी वो इतनी शॉर्ट थी कि दैट डिडंट अमाउंट टू लेट्स से पास थे. ऐसा नहीं कि दिस इज अ ब्लैंकेट पॉलिसी आई एम सेइंग फॉर ऑल द एस्पायरेंट्स, नो, दिस इज फॉर द एस्पायरेंट्स जिनको ऐसे मुकम्मल तौर पर नहीं लिखा गया था, तो उनके लिए ये चीज ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थी. अब इस चीज का भी हल आपने यही कर लेना है कि लेट्स से पहले 1 घंटे में 45 मिनट्स में आपकी आउटलाइन होनी चाहिए, 5 मिनट आप इंट्रोडक्शन रफ कर लें और 10 मिनट में आप इंट्रोडक्शन फेयर कर लें. Your 1 hour should specifically be dedicated to your intro and your outline. बाकी आपके पास बचते हैं लेट्स से 120 मिनट्स, उसमें 100 मिनट्स स्पेसिफिकली बी डेडिकेटेड टू राइटिंग बॉडी पैराग्राफ्स. अब आपको पता होना चाहिए कि 100 मिनट में आप कितने पैराग्राफ लिख सकते हैं. अगर आप एक पैराग्राफ 8 मिनट में लिख रहे हैं तो आप कुल 12 पैराग्राफ या 13 पैराग्राफ लिखवाएंगे. अगर आप एक पैराग्राफ 6 मिनट में लिख पा रहे हैं तो
would be the number. So practice के दौरान you should sensitize this thing कि आपको पता होने चाहिए कि in what time framework how many paragraphs you are able to write. 1140 पे आप कंक्लूजन लिखना शुरू कर लें, 1150 के बाद आप प्रूफ रीडिंग कर लें, प्रूफ रीडिंग से आप कोई 5-6 गलतियां भी अगर रिमूव कर लें तो दिस क्रिएट्स अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट। अच्छा, इसका एक और फायदा ये होता है कि काफी सारे एस्पायरेंट्स के अदरवाइज शुरू वाले पैराग्राफ तो अच्छे तरीके से एनालाइज होते हैं, लेकिन इनके जो बाद वाले पैराग्राफ होते हैं वो बिल्कुल ही अंडर एनालाइज्ड होते हैं। तो आप इस मसले से भी अपने आप को बचा सकते हैं कि आपके तमाम तर पैराग्राफ्स में एक सटल लेवल पे एनालिसिस जो है वो होगी। सो इन तमाम तर चीज़ों को आपने बुनियाद बनाना है। वेल, इट इज़ टू डिफिकल्ट टू से कि जो लोग 2019 में ज़बरदस्त नंबर के साथ पास हुए थे, ऐसे 2020 में वो लोग भी फेल हुए हैं। सो दिस इज हाउ द अनप्रेडिक्टेबल डायनामिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम वर्क। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन अ वर्ल्ड दैट वी लिव इन, CSS is what I call has now become too commercial a project, जिसको हम ये नाम दें तो बुरा नहीं होगा कि it is now a CSS industrial complex। तो आप उसमें कोशिश करें कि मैं टीचर से भी रिक्वेस्ट करूंगा जो कि ज्यादा से ज्यादा तादाद को अकोमोडेट करने की कोशिश करें। ट्राई टू अकोमोडेट ओनली पीपल हु यू फाइंड कैन एक्चुअली शाइन आउट इन द एग्जाम रूम। यानी कि जिन लोगों का ग्रामर का मसला है, इट इज वेरी मच ओके नॉट टू एंगेज देम इनटू द एसे सेशन। आप उनकी खामखा असेसमेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से मॉनेटरी फायदा तो थोड़ी देर का हो जाता है, बट लुक एट द नंबर, 20,000 में से 400 लोग अगर सिर्फ वैसे पास कर लें तो आई थिंक दिस इज नॉट द रिक्वायर्ड नंबर दैट नीड्स टू बी टेकन इन अकाउंट। बाकी जो मैंने शुरू में बात की कि देयर इज नो फॉल्ट इन योर स्टार्स, देयर इज फॉल्ट इन योर स्ट्रैटेजीज। The only way you can beat your hard luck, even if you think there is something called hard luck, the only way you can defeat your hard luck is hard labor. God bless you. I would be inshallah coming to interact with you people on other subjects as well, but for this point in time, this is where we end the discussion. Your questions are welcome. Inshallah next video I will be catering to those questions as well. Thank you so much.